Okay, ji, Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to our 28th webinar today. हम में से बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली हमें फॉलो कर रहे हैं और एवरी टाइम वी हैव सम न्यू फेलोज एज वेल. टाइमिंग कुछ चेंज हुई है, वेदर भी चेंज है, जिससे कुछ लोगों को मुश्किल हो रही है 4 बजे हमें ज्वाइन करने में. आई होप आइंदा कुछ दिनों में वेदर विल बी ओके एंड यू विल हैव मोर टाइम टू कनेक्ट अस. आज का टॉपिक जैसे आप जानते हैं, नेविगेटिंग द मेंटल हर्डल्स इन परस्यूट ऑफ योर आइडियल कैरियर. कि हमारे ग्रेजुएटिंग यूथ और यूथ हु आर लुकिंग फॉर देयर jobs or they are in the early stage of their jobs, how they can overcome such mental hurdles जो उन्हें psychologically परेशान कर सकती हैं. तो today we will define what are these hurdles, इनकी काजेज़ क्या हैं और हम इनको फिर ओवरकम कैसे कर सकते हैं. लकीली विद अस डॉक्टर प्रोफेसर शाजिया हसन, जो हेड कर रही है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट एट यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब. डॉक्टर साहबा होल्ड्स एन PhD in 2002 in psychology, and more than 20 years he has experience in teaching. आपका इंटरनेशनल लेवल पर काम पब्लिश भी हो चुका है, कॉन्फ्रेंसेस में आप शिरकत कर चुकी हैं, और आपका एक्सपीरियंस डीलिंग विद द ग्रेजुएटिंग यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स डे आउट एंड डे इन बहुत वैल्यूएबल है. एंड आल्सो शी इज़ अ क्लिनिकल ऑन साइट, तो वो अपने क्लिनिक का एक्सपीरियंस भी हमारे साथ आज शेयर करेंगे. हमारे साथ दूसरे स्पीकर जो इंडस्ट्री साइड से हैं, मिस्टर तलहा रसूल. ही इज़ अ सीनियर HR मैनेजर टैलेंट एंड एक्विजिशन एट नेशनल लॉजिस्टिक सेल. He has international certification in HRM, has more than 50 years of experience in diverse operations in human resource management, and has worked in sectors of humanitarian, logistic, corporate, and service industry. तो आप भी चूँकि यूथ को डील करते हैं when they come for the jobs, when they work on job with the industry. तो वो हमारे साथ इंडस्ट्री साइड पे हाउ यूथ बिहेव और किस तरह से वो उनको फिर फर्दर डेवलप करने के लिए होता है, तो वो हमारे साथ शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस. मिस्टर खुर्रम अली खान, CEO ASK डेवलपमेंट, भी हमारे साथ हैं एज यूजुअल. बाय प्रोफेशन ही इज़ तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, लेकिन सोशल मीडियाज़ में भी उनकी एक्सपर्टीज़ हैं. ही इज़ नोन फॉर हिज फेमस फूड ग्रुप एज वेल. यूथ के साथ भी आपका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है. यूनिवर्सिटीज़ में एज ए गेस्ट स्पीकर जाते हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत अपने बल पे को रिप्रेजेंट करते हुए वो ट्रेनिंग कोर्सेज कर रहे होते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद एज यूजुअल कि हम सबसे पहले तो अपने स्पीकर से रिक्वेस्ट करते हैं कि 5 to 7 मिनट प्लीज़ ऑन दिस टॉपिक शेयर व्हाट यू हैव एक्सपीरियंसेस एंड हाउ आवर वर्दी participant can learn from you. Dr. Shaba, over to you. Thank you, Rakshab. I hope that everybody can hear me. Assalamu alaikum, all the participants of this webinar. I'm very thankful to Ask Development to give this opportunity to talk about this very, very important and challenging issues for our youth these days. We feel that whenever you start your career or you start planning your career, this is the most important time where you are getting feedback from every side, and people try to make you decide for your whole life that what and how you will be living a life based on the career path you have chosen for yourself. इसमें जो बहुत interesting चीजें हैं, many times when I teach students, when I take or give them training regarding the clinical expertise, or we deal with clients in the clinics and hospitals. So when young children or young people are coming to our clinics, they are coming to the classrooms, the first thing whenever I ask them that what is the motivation behind this subject, this career, this path which you have chosen for yourself. So there are 3, 4, 5 demographic very important areas in our social structure which make them decide about the subject they are taking. One
the very important thing that how family take the career. Are they taking it something specific which they'll be relying on after completion of their degree? Or they are thinking that this is just a piece of paper which they require to get a better status in the society? Second thing, that what career or what professional background their parents belong to, what segment of the society they belong to, and what do they think that their children should be adopting after them. Whatever they are pursuing, they think that whether they should or they should not be going in that specific career. Third, but most important factor, that is the financial situations of our society. Because we don't have many covers the financial policies of the country, where our youth, our children, our youth, or our people in old age can get benefits from the government, and they can be financed by them if they are in not better financial situations. So many of them, maybe many times, they don't want to pursue a career, but they are doing it just because they want to make money. So that is one major reason that they are going for some specific subject or some specific career. Last thing which I feel, it's peer pressure and the industry or the overall international trends in market, that what is the most important subject these days, or where they get, like these days in any university, if you see, the highest admissions are in IT department, because everybody think that 20 years down the road, everything will be based on IT. So there are many IT experts which are required by the industry nationally and internationally. So there are 4 or 5 very major and broader aspects I have discussed that which make people think or decide about their career. Very unfortunate when sometimes youth are very clear, and these days the very good part is that many of our young people, they are somehow started collecting information and started thinking about their careers which they want to pursue. And they have questions, they have discussions, they challenge their adults, they challenge their professors, they challenge their people in the market, and ask them that why should we be doing it when we don't want to do it. So this is another culture, and especially if you look in a US market or US academia, so many of the students in their academic field, they are mostly relying on the specific skill-based education. And students are not very willing to go for degree programs. They are more willing to go for skill-based education. Based on that, they can get jobs in the market, and they are not able to work as full-time like employees. They want to work on part-time, and they want to make a life and their work balance, work and life balance approach they want to pursue. They think that we should be living a life where we should be giving time, equal time to our careers and equal time to our personal life and personal health and families and society as well, community, which is a very good trend too. But definitely working on part-time or not being there all the time for your specific career will not be bringing the results which we may want for our specific subjects or specific jobs. क्लिनिक के अंदर जो मुझे सबसे ज्यादा केसेस, एक बहुत छोटा सा केस मैं आपसे डिस्कस करूंगी. There was a girl coming to me who was just 15-16 years of age, and she is a student who's getting 99% marks in science. She is one of the best student of school and one of the topper of the school. And I think due to some health issues or due to some family issues, she was not able to perform in one paper. And the way her teacher treated her in the classroom, and her parents made her feel कि आपने नंबर कैसे नहीं लिए. ठीक है, तो हमारी जो बहुत हाईएस्ट कैटेगरी में स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको हम जीनियर स्टूडेंट्स भी कहते हैं, हार्ड वर्किंग भी कहते हैं, जो बहुत अच्छे नंबर भी ले लेते हैं, तो उन पे जो एक प्रेशर है मेंटेनिंग दैट स्टेटस,
वो जो स्टेटस को हमने कर दिया है, बिकॉज जो मुझे लाइन बड़ी मुझे परेशान कौन लगी कि उनके उस्ताद ने उनसे कहा कि ये कैसे हो गया कि मेरी स्टूडेंट 99% से कम नंबर लेके आई कम है, सही। ये कैसे हो गया, यानी ये तो मेरी मार्केट आपने खराब कर दी कि आई एम नोन फॉर गिविंग मेकिंग इट पॉसिबल फॉर स्टूडेंट्स कि मेरा कोई स्टूडेंट 99 से कम नंबरों पे नहीं होता, तो आज के बाद मुझे तो आपने अपना चेहरा नहीं दिखाना, बिकॉज आई एम हाईली वेल सेड। डिसअपॉइंटेड। शी डेवलप दैट फीलिंग ऑफ एंजाइटी कि वो जैसे एग्जाम शुरू होते थे तो उसकी इरिटेशन, उसकी सफोकेशन और उसका डिप्रेशन शुरू हो जाता था, और उसकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस थी, जस्ट बिकॉज शी वांटेड कि नहीं मैंने तो 98 तो हो ही नहीं सकता ना, 99 से कम पे तो कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है। तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि हाउ एकेडेमिया इज कंट्रीब्यूटिंग, देन पेरेंट्स, कि नहीं एक बच्चा तो हमारा नहीं पढ़ा, वो तो अच्छा बच्चा नहीं था लेकिन तो बेहतरीन बच्चे थे, तो ये कैसे मुमकिन हो गया कि तुम्हारे मार्क्स कम आ गए? So somebody who's performing, sometimes we give them so much pressure that you don't have an option to make mistakes. तो बच्चा जो परफॉर्म भी कर रहा है वो भी प्रेशर में है, और जो परफॉर्म नहीं कर रहा वो भी प्रेशर में है, क्योंकि उसे ये पता है कि वो जो स्टेटस को है उसका सोसाइटी में, अपने पीयर ग्रुप में, अपनी फैमिली के अंदर, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम जो आजकल का जो करियर है वो बेस्ड ऑन सो मेनी थिंग्स है, कि आपका जो सोशल मीडिया भी उसमें रोल प्ले कर रहा है, आपकी इंटरनेशनल मार्केट भी रोल प्ले कर रही है, आपका जो फैमिली स्ट्रक्चर और आपके जो सोसाइटी का कल्चर और स्ट्रक्चर है, कंडीशंस हैं, दोज आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट टूवर्ड्स दैट। और बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है मेंटली स्टूडेंट्स के ऊपर, मेंटली यूथ के ऊपर, कि हमने करना क्या है, वी हैव टू। सही। और आई बिलीव कि वो जो सोशल वैलिडेशन का पॉइंट है, दैट इज कमिंग के जी अगर आप ये होंगे तो आपको ये एक्सेप्टेंस दी जाएगी, वो टीचर है, वो पेरेंट है, या वो सोसाइटी ऑन अ होल। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ा प्रेशर हम माउंट कर रहे हैं, और वो जो एक क्रिएटिविटी थी, एनालिटिकल स्किल्स थी, जो एक हम कहते थे कि जो आपने स्टूडेंट को इतनी इंडिपेंडेंस और इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है दैट दे कैन फाइंड द ट्रू प्रोफेशनल्स विद इन देमसेल्व्स, दैट व्हाट दे कैन बी, व्हाट दे माइट बी इन देयर करियर एंड इन देयर लाइफ, वो कम होता जा रहा है। उसकी बजाय एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स और सेट पैटर्न डेवलप होना शुरू हो गए हैं, जो कि यूथ के लिए चैलेंजिंग है बहुत ज्यादा। थैंक यू अर्शद साहब, आई थिंक जी बहुत आई शुक्रिया, हैव हम आगे said चलते हैं। enough. जी अगर जी, जरूरत दैट्स होगी तो एनफ। I can speak more about it. Sure, Okay. sure. We have certain questions and our audience also willing to ask some questions. तो आपने बड़े अच्छी तरह से बताया कि वो सब जैसे पेरेंट्स, पीयर्स, टीचर्स, दोज हु आर सपोज टू बी आवर सपोर्ट, तो वो जी जी बल्कि प्रेशर और हमारे ऊपर एक तरह से मेंटल जो ब्लॉकेट्स हैं उनको डेवलप करना शुरू कर देते हैं। तो और फिर हमारी अपनी पर्सनल एक्सपेक्टेशन भी बड़ी हाई होती हैं, क्योंकि वो भी सोशल मीडिया से जनरेटेड है, ना कि जी बेस्ड अपॉन आवर पर्सनल असेसमेंट कि मैं कहाँ खड़ा हूँ इन माय स्किल एंड एजुकेशन एंड वेयर आई कैन गो। तो ये जी चीज़ भी एक अननाउन और अनसीन प्रेशर जो है वो हमारे ऊपर जो है वो एक मेंटल हर्डल के तौर पर आता है। और रसो आप क्या कहेंगे, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? आप खुद भी माशाल्लाह यू आर फादर ऑफ यंग टू सन्स, तो आप कैसे देखते हैं? सबसे जो बड़ी रुख साहब ने बहुत अच्छी बातें की। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि फेलियर तो फेलियर, अंडर परफॉर्मेंस को जुर्म बना दिया जाता है, उसको देखा जाता है हाँ जैसे कोई कोई जुर्म हो गया। और एक हमने दोस्तों ने एक रूल बनाया था कि जो जब दोस्त कोई परेशान हो ना तो उससे उसकी परेशानी के बारे में मत करो, वो ऑलरेडी परेशान है, उसको हौसला दो। सही। आज सुबह की बात है, मैं एक सोशल मीडिया पे देख रहा था। अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़ा एक्टर है। अमिताभ बच्चन इज नाउ 81 ईयर्स ओल्ड। और सबको पता है, जितने ऑडियंस होगी, आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी सही। शायद ऐसा ना हो जिसको अमिताभ बच्चन के बारे में ना पता हो। 35 ईयर्स की एज में वो सुपर जी इंडिया का यार, मैं अभी एक फर्स्ट वर्कशॉप में हूँ, आप स्टार थोड़ी देर एक्टर में था, कॉल स्टार करते हैं था। मुझे 5 बजे तक, मेरे पर्सनल नंबर। 58 ईयर्स की एज में वो बैंकक्रप्ट था।
और अरे 90 करोड़ का डेट था उसके ऊपर, 90 करोड़ का। एक ये पिक्चर किस जो एज मैंने की कल दोबारा देखा, बताइएगा? अमिताभ बच्चन 35 साल की उम्र में सुपरस्टार बन ओके, चुका था। ठीक है, ठीक है। 58 इयर्स की उम्र में वो हाँ, हाँ। बैंकरप्ट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, उस पे 90 करोड़ का लोन। ओह माय गॉड! एक अच्छा। और एक्टर है, उनका मुझे नाम नहीं पता, वो बैंकर हैं। तो उन्होंने कहा कि हम बैंकर्स जाते थे उनके पास, वो कहता था हुँ, मैं, हुँ। मुझे थोड़ा मौका दो, तो कहते मैंने दरमियान में इंटरवीन किया, मैंने कहा यार इसको मौका दे दो, हुँ। इसको इसके खिलाफ प्रोसीडिंग करने की जरूरत नहीं है, ही विल कम बैक। 81 की एज में अमिताभ बच्चन 3200 करोड़ की नेटवर्थ पे बैठा है। ओह! 32 करोड़। 58 की एज में वो बैंकरप्ट हो गया था विद 90 करोड़ डेट। सही, सही। 90 करोड़, हम मिडिल क्लास लोगों के लिए 90 करोड़ का अबाउट लोन 1 भी बहुत बिलियन। बड़ा है। ठीक है। नाइन और 90 और टू वो सही। आया, को रिकवर हुआ, और अब वो 81 की एज में 3200 करोड़ की नेटवर्थ है उसकी। ओके, चलो पॉइंट ये था कि कहीं कांग्रेचुलेशन। भी लूज करना भाई, सबसे बड़ा डायलेमा हमारी सोसाइटी में, किसी की जॉब खत्म हो जाती है, घर वाले उसे मुजरिम बना देते हैं। हुँ। हालांकि सपोर्ट चाहिए जब होती है, जब आप अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट नहीं चाहिए होती। सही, स्टार्ट सही। एकेडमिया से पहले स्टार्ट हमारे घरों से ही चीज होती है। आपने अच्छा परफॉर्म किया, वो आपके लिए एक बेंचमार्क बन गया। वो बेंचमार्क था भी नहीं, कभी 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 आई वॉज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट। मैं टॉपर नहीं था, मेरा सिर्फ लाइफ में तीन वो है, एक मेरा गोल्ड मेडल आया था बीकॉम में, एक मैंने 5वीं में टॉप किया था, और एक मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर बना था जब मैं फर्स्ट टाइम में था। तो जो 5वीं का टॉप था ना, उसको ऐसा बेंचमार्क था कि मुझे मैट्रिक कॉलेज तक होता था, मेरी वालदा कहती थी ये कर तो सकता है, देखो 5वीं में से टॉप किया था। मैंने कहा जी मुझे पता होता मैं ना करता। सही मुझे है। पता होता था मैं ना करता। मैं टॉप 10 टॉप 15 स्टूडेंट्स में आता था क्लास के। जो प्रेशर था ना कि वो बना देना कि जी कर सकते हो, तुम नहीं कर रहे, नहीं भाई कर रहे हैं, और चीजें भी मैनेज है, बेतहाशा चीजें। एक अगर परफेक्ट हम वो देखें तो वो सबसे होता है जो गेम्स में भी हो, एजुकेशन में भी हो, एकेडमिया में टॉपर रहना कोई बेंचमार्क तो नहीं है ना। तो जैसे सही। भी डॉक्टर साहब ने कहा कि 98 टू 99%, मतलब वो फेल तो बहुत दूर की बात है ना। थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस, वो भी आपने खुद साख्ता एक्सपेक्टेशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अपनी एक्सपेक्टेशंस को सेट करना। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने तवाफ़े आरज़ू करना कि जी आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? किस चीज़ से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशी की एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ी रीज़न है ये जो लोग उदास रहते हैं। इसलिए वो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उनको चीज़ मिलती नहीं है। हर चीज़ होती है बट वो उदास होते हैं। तो ये सही। इतना इंपॉर्टेंट है, और स्टार्टिंग फ्रॉम फैमिली, स्टार्टिंग फ्रॉम पेरेंट्स एंड देन हुँ। एकेडमिया, कि आपने किया है, अगर कोई अंडर परफॉर्म कर रहा है, आप उसको मौका दो, आप उसको तसल्ली दो, और देखो वो कैसा परफॉर्म करता है। क्यों? आप जब स्कूल की इस डॉक्टर साहब तो इस प्रोफेशन से हैं, स्कूल्स के बच्चों की सुसाइडल वो बढ़ती जा रही है। जी। उनके मेंटल इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? एक ऐसा सेट, और हर बच्चा तो टॉप नहीं कर सकता। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि जी हर बच्चा टॉप कैसे कर सकता है। मतलब ज़ाहिर-सी बात है, सही। हम ऑर्गेनाइजेशन, हम एंटरप्रेन्योर्स हैं। हम वैसे एंटरप्रेन्योर्स करो ने भाई, 5 प्राइवेट स्कूल वाले हर बच्चे को टॉप करा देते हैं, मेडल भी घर भिजवा देते हैं। करा उनमें देते है हैं ये बाद, हौसला। हाँ, मगर बाद में फिर इश्यू होता है ना, जब बाद में मैं आपको बताऊँ, मैं पेशावर में था। मैं जवानी में मार्शल आर्टिस्ट था, मतलब मैं उसमें गया। तो मेरे बेटे को मैंने दाखिल करवाया स्कूल में। अच्छा वो टेक्सटाइल में था, तगड़ी पार्टी थी। तो अब वो हफ्ते या 10 दिन बाद 7 या 8 साल का था वही बेटा जिसकी अब शादी है। उसको ना हुँ। उन्होंने व्हाइट सीनियर कर दिया। उसके व्हाइट सीनियर का मतलब होता है कि उसने 6 फाइट्स लड़ी हैं और उसने इतना किया। मैं चला गया उसके उसमें, मैं कहा जी मुझे बताओ कि तुमने इसको व्हाइट सीनियर कैसे किया? 2 हफ्ते हुए हैं, इसको तो कुछ भी नहीं आता अभी। अच्छा। तुमने उसे व्हाइट सीनियर कर, उसने कहा नहीं जी बच्चे को खुश करने के लिए। मैं कहा देन यू हैव टू फाइट विद मी। तुम्हारी हुँ। बेल्ट पे मुझे डाउट है। हाँ। मैं ब्राउन बेल्ट था, अब पुरानी बात है, तुम ब्लैक बेल्ट हो, आई हैव टू फाइट विद यू। मुझे पता तो चले कि तुमने कहाँ से किया। अगर तुम एक बच्चे को उससे बिला वजह पुश कर रहे हो, तो उसकी तो तुमने वो कर दी, एक्सपेक्टेशन ही खराब कर दी ना। उसने कुछ किए बगैर हुँ। अचीव कर लिया। बिल्कुल। सिमिलरली जब वो तो फिर बच्चे हमेशा को शॉर्टकट ही ढूँढेगा। बिल्कुल सही। डेफिनेटली, भई अभी कुछ किया ही नहीं, तुमने उसके बाप को एक्चुअली खुश करने के लिए, जो तुम भूल गए कि वो खुद उस प्रोफ़ेशन में रह चुका है। तुमने तो पॉइंट ये है कि एक्सपेक्टेशन सही सेट की जाए, और जो जो इस हर्डल से गुज़र रहे हैं उसको सपोर्ट किया जाए। अचीवमेंट लोगों में कॉम्पिटेंसी होती है, लोगों में होता है। हर हर एक के पास हर राइटर का डेडलॉक आता है, वो क्या कहते हैं, राइटर ब्लॉक आता है। हर राइटर हुँ। हर प्रोफ़ेशनल का ये राइटर ब्लॉक टाइप चीज़ आती है, आप स्टक हो जाते हैं चीज़ों में।
फटीग में आ जाते हैं, चीज़ें सही, होती हैं, सही। हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, आप नहीं कर पा रहे होते हैं। आज के लिए ख़ास तौर पे कोविड के बाद जो कोविड के पेशेंट्स रह चुके हैं, उनमें सबसे बड़ा इश्यू ये है कि फटीग में आते हैं वो। फटीग होती है जब वो ज़रा-सा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं तो उनकी चीज़ें रुक जाती हैं, उनका दिमाग बंद मतलब ब्लॉक हो जाता है, वो ये नहीं कर पा रहे होते कि हम किस तरफ जाएँ। सिमिलरली बच्चे हैं, हम जिनकी स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, हम यूथ की बात कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए कि अपनी एक्सपेक्टेशन सही सेट करें। अपनी एक्सपेक्टेशन सही सेट करें, अपने आप को देखें आपका गोल क्या है और गोल के लिए स्टेप्स बनाएँ ताकि आपको पता हो कि आप क्या अचीव कर सकेंगे। अभी ये सही, सही। पाकिस्तान 4 मैचेज़ में हार गया है न्यूज़ीलैंड के साथ। बड़ा क्लियर है, उसके अगर पढ़ें तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बड़ा वाज़ेह क्लियर है कि पाकिस्तान क्यों हारा, तो जब तक वो स्टेप्स कंप्लीट नहीं आप टीम को कहते हैं ना, आप टीम को बुरा-भला कहते हैं ना, कुछ भी है। स्टेप्स कंप्लीशन में कोई हेल्प नहीं कर रहा, उसको वो कैप्टन हट जाएगा, कोच हट जाएगा, इससे रिज़ाइन माँग लेंगे, उससे रिज़ाइन माँग लेंगे, बट वो स्टेप्स नहीं करेंगे। सिमिलरली यूथ के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उन स्टेप्स को जानें कि जो वो मिस कर रहे हैं और बीइंग पेरेंट, बीइंग अ टीचर जो सोसाइटी का काम है, वो ये काम है कि उनको मौका दें, उनसे सुनें, एटलीस्ट देखें तो सही, उस कॉज़ को दूर करने की कोशिश करें, स्टेट के प्रेशर को डबल कर दें कि उसको जो फेलियर का या अंडर परफॉर्मेंस का एहसास है, वो 10 गुना बढ़ जाए, रूटीन के बजाय। सही, वापस आता थैंक है, यू। हर इंसान वापस आता है। जी, चलिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहिबा थोड़ा-सा एक तो हमने ये डिस्कस किया कि जो हमारे पीयर्स यानी जो सोसाइटी एज़ अ होल एक ब्लॉक डेवलप कर देती है हमारे लिए साइकोलॉजिकल लिमिटेशंस सेट करती है जिसमें पेरेंट्स भी आ गए टीचर्स या फ़ाल्स एक्सपेक्टेशन। मैं चाहूँगा कि अगर आप इंडिविजुअल को सामने रखते हुए ख़ास तौर पे यंग पर्सन उसकी पर्सनल क्या इश्यूज़ हैं जो वो वक़्त के साथ खुद डेवलप कर लेता है? क्योंकि मैं पढ़ रहा था कहीं कि ये जो मेंटल ब्लॉक ये बुनियादी तौर पर तो एक साइकोलॉजिकल ऑब्स्टिकल है कि जो हम्म, या वो उस अपने आप को लिमिट कर लेता है कि मैं ये कर ही नहीं सकता, उसके अंदर फ़ियर्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये देखिए जी, क्यों हम होता है? इस पे हम ज़रा इसको बात करेंगे। जी, इसको मैं अरशद साहब यही कहूँगी कि मेनी टाइम्स हम पेरेंट्स ये नहीं समझ पा रहे होते। जो अर्ली पेरेंटिंग का है और साइकोलॉजी में जो इनिशिएट किया जो फर्स्ट थेरेपी हमारी है वो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हुँ, को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, बहुत सिग्निफाई करती है। टॉक्स अबाउट दैट whatever you had in your past and initial 5 years of your life matters a lot as a person, as a human being. ठीक आपको है। जो और इसमें मैं जो दूसरा पार्ट अब देखती हूँ बीइंग एन एडिशन, वो दूसरा स्कूल वाला टाइम होता है। तो इनिशियल जो इयर्स ऑफ लाइफ हैं उसमें वी कॉल इट स्कीमास। ठीक है। स्टूडेंट्स एंड ह्यूमंस डेवलप स्कीमास और स्कीमास ये होते हैं दैट वी स्टार्ट बिलीविंग इन आवरसेल्व्स इन सर्टेन वे, we start thinking about ourselves in certain way, we start feeling that what other people are giving opinion about us, and when we tried and we failed or we succeeded, we start developing our belief system on those जी। schemas. पहले हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं और हमें फीडबैक मिलता है एनवायरनमेंट से और वो फीडबैक डेफिनेटली हमें एडल्ट्स देते हैं। एडल्ट्स देते हैं तो वो बीइंग अ चाइल्ड वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दैट हाउ अदर पीपल आर थिंकिंग। जी ये हमारा बच्चा बड़ा ज़हीन है, ये बड़ा होशियार है, ये बच्चा बदतमीज है, ये बच्चा बहुत रिजिड है, ये जिद्दी बहुत है जी, ये बहुत हुँ, जिद्दी है। हुँ। तो व्हेन वी स्टार्ट सेइंग सच तो इनिशियल लेवल पे पेरेंट्स इस तरह की बातें कहते हैं, इसी तरह से टीचर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स और बच्चे जो हैं दे स्टार्ट thinking about themselves in certain schemas, in certain frames where they start thinking कि ये हम कर सकते हैं या हम नहीं कर सकते, हम सही। ऐसे हैं, उसमें बिलीव करना शुरू कर देते हैं। और जब आप अपने आप में बिलीव करना शुरू करते हैं whether that is positive or negative, that is something which will be definitely affecting your life as a human being। हमारे पास साइकोपैथोलॉजीज के जितने पेशेंट्स आते हैं, वो शिज़ोफ्रेनिया है, वो डिप्रेशन है, वो बाइपोलर है, वो मैनिया है, वो कन्वर्जन है, वो पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स हैं, व्हाटएवर दे आर कमिंग विद, वो कहीं न कहीं उनके एनवायरनमेंट ने उनमें बूस्ट किया होता है और फिर उसको वो लेके जैसे मैंने आपसे कहा ना कि टीचर्स बाज़ जी, औक़ात जी। एक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में नहीं परफ़ॉर्म किया, तो व्हाई आर यू सेइंग कि ये बच्चा अच्छा परफॉर्मर नहीं है? हुँ, वो हो सकता है किसी दूसरे सब्जेक्ट में बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर सकता है, आप उसको एनकरेज तो करें। तो सही। हमारे ये जो फीडबैक है फ्रॉम द सोसाइटी,
फीडबैक फ्रॉम योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जिसमें आपकी परफॉर्मेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल में जैसे अभी बात कर रहे थे, आपके दूसरे स्पीकर भी इस पे बात हो रही थी कि 5वीं में टॉप किया तो अब ये बच्चा जो है ये सब कुछ कर सकता है। कर सकते। अब हो सकता है देर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक सर्टेन लेवल पे आप एक सर्टेन टाइम पे आप परफॉर्म कर जाते हैं। आपके कंपेटिटर्स कौन थे, क्लास में कौन, टीचर कौन था, आपका घर का माहौल उस वक्त क्या था, वो सारी चीजें मैटर कर रही होती हैं। तो ये जो पर्सनल ब्लॉक्स हैं, समटाइम्स वी परफॉर्म एंड वी आर नॉट एबल टू अचीव, एंड समटाइम वी परफॉर्म एट एवरेज एंड वी अचीव एट मैक्सिमम। तो जब सही। दोनों चीजें हो रही होती हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता हम अपने बारे में बिलीफ सिस्टम डेवलप कर लेते हैं कि जी मैं जैसे फॉर इंस्टेंस अगर कोई आपके भी अपने बारे में सर्टेन बिलीफ्स होंगे कि मेरे अंदर ये यकीन। क्वालिटीज हैं और ये मेरे अंदर ये मेरी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। और जब सही। हम उसकी एविडेंस ढूंढने जाते हैं तो द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि वो एक एविडेंस की बेस पे वो बिलीफ बना होता है। बाजुकात हमारे पास एंजाइटी के जितने लोग आते हैं, परफॉर्मेंस एंजाइटी के स्टूडेंट्स, उनकी परफॉर्मेंस कहाँ से खराब हुई? एक क्लास में आई सेड समथिंग, टीचर मेरे ऊपर बहुत जोर से हंसा। एक सब्जेक्ट में और पूरी क्लास हंसी। फिर एक सब्जेक्ट में आई डिड नॉट परफॉर्म वेल, घर गया अब्बा से बहुत पिटाई हुई या बहुत ह्यूमिलेट किया उन्होंने। उन्होंने सबके सामने मुझे बहुत बातें सुनाई। अब एक सब्जेक्ट जो है वो उसका बिलीफ बन गया कि इसमें मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, और उसकी एंजाइटी इतनी हाई हो जाती है कि बच्चा परफॉर्म करना भी चाहता है तो वो ब्लैंक हो जाता है, वो मेंटली ब्लैंक हो जाता है। उसको सही। आता भी है तो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता, वो करना भी चाहता है तो वो नहीं कर पा रहा होता। और इसी तरह से बाजुकात हम बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ कि नहीं जी हम, क्योंकि हमने जहाँ compete किया था वहां पे हमारे कंपेटिटर्स उतने स्ट्रांग नहीं थे, तो हमें ये लगने लगता है कि हम आउट ऑफ दिस सही। वर्ल्ड कोई चीज है, जिससे आप इतना अपने आप को हाई फाई समझने लगते हैं कि जब आप कहीं फेल होते हैं तो यू कांट टेक दैट फेलियर, यू कांट टेक दैट कॉम्पिटिशन कि अच्छा ये सही। दूसरा मुझसे बेहतर कैसे हो सकता है। तो ये बोथ वेज में इट बिकम्स, तो हम ये कहते हैं कि जो एक बैलेंस्ड अप्रोच है, बीइंग रियलिस्टिक एंड बिलीविंग इन योरसेल्फ इन अ पॉजिटिव मैनर एंड गिविंग योरसेल्फ सम स्पेस अबाउट थिंग्स, के जिंदगी में हर चीज हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती। तो दैट इज समथिंग विच वी डेवलप, जिसमें सोसाइटी का भी रोल है, जिसमें पेरेंट्स का भी रोल है, जिसमें दोस्तों का भी रोल है, जिसमें आपके उस्तादों का भी रोल है। तो सारे लोग जो हैं और हम खुद फिर, यानी बाजुकात सारा सब कहने के बावजूद अगर हम अपने आप को रियलिस्टिक वे में एनालिसिस करें कि हम कितना कर सकते हैं, तो फिर शायद कभी भी हम वो पैथोलॉजी डेवलप नहीं करेंगे और वो प्रॉब्लम्स डेवलप नहीं करेंगे जो हमें अंडर परफॉर्मर या फिर डिप्रेशन की साइड पे या फिर हमें लाइफ से दूर या करियर से ले जाए। सही। बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे तरीके से आपने बताया। मैंने जो सीखा एक तो ये है कि लोगों की ज़्यादा बातें नहीं सुननी चाहिए, खासतौर पर जो नेगेटिव है। बिल्कुल बल्कि बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि इसमें बहुत जितना हम पर्सनल डेवलपमेंट पे लिटरेचर डॉक्टर साहब पढ़ते हैं ना, तो उसमें बड़ी खास बात है कि आप अपने नेगेटिव दोस्तों से जब तक अलग नहीं होंगे, जी आपकी ग्रोथ और आपकी रनिंग जो है वो सक्सेस शुरू नहीं होती, क्योंकि आप उसी के अंदर फंसे रहते हैं। बल्कि मुझे बिल्कुल। इसलिए मैं पढ़ रहा था, तो उसमें एक उन्होंने दिया हुआ था लर्निंग के लिए, तो मेंढकों की रेस हुई। तो ज़रा डिफ़िकल्ट रास्ता था, उछल-कूद भी थी, कहीं पानी था, कहीं खुशकी थी। तो पानी में तो दे आर ऑल गुड, लेकिन खुशकी पे उनके लिए बड़ा मुश्किल था। और ऊपर से जो ऑडियंस है, जो स्पेक्टेटर्स हैं, वो भी शोर मचा रहे थे, "ओह! तू क्या कर रहा है? इधर देख, उधर देख।" तो सारे के सारे कुछ वक़्त के बाद मेंढक जो हैं, वो रेस से आउट हो गए, सिवाय एक के। और वो जी अपने उस पोस्ट गोल जो है, उस तक पहुँच गया। बाद में पता चला कि एक्चुअली ये जो मेंढक था, ये डेफ है। जी, ये सुन नहीं इसने सकता। इसने अपने दोस्तों और तनकीद करने वालों की बातें सुनी नहीं है, और वो लगा रहा। उसको कोई बिल्कुल। इंटरप्शन नहीं उसने ली, और वो अपने हम्म, गोल पे पहुंच गया। ये बहुत अच्छे तरीके से नुक्ता आपने हमें समझाया है। तो खुर्रम साहब, आप भी हमारे साथ शेयर करें कि मैं तो ये देख रहा था कि एक तो जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि हम अपना एक बैलेंस अप्रोच भी ज़िंदगी की रखें कि हम अपने आप को इतना हाईली
ना कर रहे हों रेज, कि फिर हमें खुद ब खुद जो है मुख्तलिफ जो है वो छोटी सी नाकामी में हमें बहुत बड़ी महसूस हो जाए, या ये कि हम पेसिमिस्टिक होते चले जाएं। तो बैलेंस अप्रोच को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप टारगेट क्या सेट कर रहे हैं और आप किसको देख रहे हैं। जैसे आपने कहा ना कि बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपकी अपनी ऐसे दोस्तों को छोड़ दें जो आपको उसी तरह होता है, मतलब अ पर्सन इज़ हम्म, नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। सेकंडली, आप फॉलो किसको कर रहे हैं, आप आइडियलाइज़ किसको कर रहे हैं। ज़्यादा लोग ज़्यादा जो डिप्रेशन में लोग जाते हैं या उनको ज़्यादा हर्डल्स महसूस होती हैं, वहाँ वो उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसके ना तो उनके पास टूल्स होते हैं, ना वो उनके लिए बनी होती है। या उनके लिए बनी मीन्स या फिर उसमें डिस्टेंस ज़्यादा होता है। आज से 4 दिन पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे फैमिली का, ऐसे इलेक्ट्रिक इंजीनियर, उसका यूएस से पढ़ के लड़का है। उसने कंपनी चेंज की थी। बहुत अच्छी कंपनी में था। उससे मैंने पूछा कि अब क्या है तुम्हारा? हम्म, तो आपके पड़ोसी उनका बेटा एक्चुअली, की उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि वहाँ पे अच्छा, एनवायरनमेंट बहुत कॉम्पिटिटिव था, बहुत अच्छा था। हम्म, बट वहाँ पे वो सीधा आपको ना उसमें डाल देते थे, आपको प्रोजेक्ट में डाल देते थे, तो आपके ऊपर डिपेंडेंट था। तो मैं उस चीज़ को एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पा रहा था। 2 के वहाँ पे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट ज़्यादा था, आगे बढ़ने की मतलब उनका। उसने कहा जी वो कंपनी इस साल उसका टर्नओवर $70 मिलियन पे है, मेरा जो है वो मैं जिसमें हूँ वो 15 पे पहुँचा है, बट यहाँ मैं अपना टाइम चूज़ कर सकता हूँ। हम्म, यहाँ पे प्रोजेक्ट चीज़ें चलती हैं, अप्रोच डिफरेंट है, मैं ग्रेजुअली लेके चलता हूँ, तो आई एम मोर सूटेबल इन दिस काइंड ऑफ वन। मेबी वहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट में होता, बट मेरे लिए सूट करता है, मैं यहाँ पे लंबा अरसा चल सकता हूँ। हर इंसान डिफरेंट है, हर एक की अप्रोच डिफरेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप किसको आइडियलाइज़ कर रहे हैं। देखिए, देयर इज़ नो लिमिट, पैसे की भी कोई लिमिट नहीं है, जो पर्क्स होते हैं उनकी भी कोई लिमिट नहीं है। चीज़ों को टाइम देना पड़ता है प्रोसेस के साथ-साथ। आप हर्डल्स आती क्यों हैं कि आप कभी ऐसी चीज़ को अचीव करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर आप गलती कर बैठते हैं, या आप वो अचीव नहीं कर पा रहे होते, आप डिप्रेशन में जाना शुरू कर देते हैं। ओवरनाइट चीज़ें नहीं होती। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो ये क्विक विन्स की तलाश में जो सही। जाते हैं, वो और चीज़ है। शॉर्टकट्स उसके का जो हमारी सोसाइटी में बहुत शॉर्टकट्स की ज़्यादा आ बात गया है। है कि एक कोई वो कर रहा है, वो फलाना इतना कमा रहा है, उसने तो फर्स्ट ईयर के बाद उसके ये सीखा, उसको मिल गया। नहीं, एड्रेस अल्लाह ने दिया है, अल्लाह बड़े डिफरेंट हिसाब से आपको पहुँचाता है। कोई यंग एज में बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं, फिर सारी ज़िंदगी वो भुगतते रहते हैं, वो नहीं कर पाते। मैंने बहुत दफ़ा देखा है, हम्म, मे बी ऐसे मैं आई एम नॉट मेरी न एज़ अ प्रोफेशनल बात नहीं कर रहा, एक जर्नल एज़ अ लेमैन बात कर रहा हूँ कि जो बच्चे बहुत जल्दी कमाना स्टार्ट कर जाते हैं ना, वो उनका वो स्कोप बड़ा लिमिटेड रह जाता है। बड़ा स्कोप सही। लिमिटेड रह जाता है, वो उस कमाने के चक्कर में जो डेवलपमेंट होती है ना, वो फ़ेज़ गुज़ार जाते हैं, उनकी हो नहीं पाती। तो वो फिर हाई अचीवर्स में कभी नहीं पहुँचते, वो उसी में फ़ेज़ में फँसे रह जाते हैं। अगेन इट्स जस्ट अ लेमैन ऑब्जर्वेशन, मैं एज़ अ प्रोफेशनल बात नहीं कर रहा, यानी कि तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो प्रोसेस है उसको पूरा होने दें। अपनी ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऐसी सेट करें। मैं एक बोर्ड मीटिंग में बैठा हुआ था। आई वाज़ हेड ऑफ फाइनेंस, सीएफओ था। तो वहाँ हमारी एक चाइनीज़ कोलैबोरेशन थी। तो उसमें जो हमारी जो तरफ से जो लोग टारगेट सेट कर रहे थे, वो टारगेट सेट कर रहे थे मिसाल के तौर पे कोई 120% मोर, कि आपने 100 मिलियन अभी किया तो अगले साल का 220 मिलियन। वो चाइनीज़ खड़ा हुआ, वो नॉर्मली चाइनीज़ की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो कुछ 6 फुट 3 इंच का चाइनीज़ था, बड़ा यूनिक चीज़ था। उसने हाथ उठाया और छत को हाथ लगाने की कोशिश की, और उसने फिर अपने पंजों के बल खड़ा हुआ और ही ट्राई टू, उसने कहा टारगेट ऐसा रखो जो अचीवेबल हो। अचीवेबल, सही। फैंसी टारगेट्स की ज़रूरत नहीं है जो तुम अचीव ही ना कर सको, फिर डिप्रेस रहो। हम्म, तो ठीक है, टारगेट हाई होना चाहिए जिसमें आपकी एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल हो। आप अप्रोच करें, आपको फुल अपनी एनर्जी यूटिलाइज़ करें, आप सारी एफर्ट्स करें, इतना टारगेट ज़रूर होना चाहिए, बट ऐसा मत करें कि जहाँ पे आपको जंपें लगानी पड़े, आप लगा ही ना सकें। सही। उतने पे आप जाएँ, आपको अगर मौका मिलता है आप ओवर अचीव करें, किसी ने रिस्ट्रिक्ट तो नहीं किया, कोई मना तो नहीं करेगा। सिमिलरली स्टडीज़ हो गए, चीज़ें हो गई, स्किल सीखने की बात हो गई, आजकल लोग 1 महीने में वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। इसलिए कि सही। कोई कोर्स खोल के बैठा हुआ है, वो कहते हैं जी हमारा ये हमने वो लगाया हुआ है, टेस्टिमोनियल लगा हुआ है कि इसने फलाने ने 1 महीने में वेबसाइट सीखी थी, वो $5000 महीने के कमा रहा है। अब वो मिथ था, वो झूठ है, वो सच है, किसी को नहीं पता। अपने आप को डिप्रेस करेंगे आप। आप ऐसे टारगेट के पीछे जाएँगे और ये सोच-सोच के आधी जो डिप्रेशंस होती हैं, वो खुद साख्ता होती हैं। उसमें आप ये सोच-सोच के परेशान रहते हैं कि जी मैं वो नहीं कर पा रहा जो दूसरा कर पा रहा है। मैं वो गाड़ी अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा, मैं वो चीज़ कंप्यूटर अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा, मैं वो मोबाइल अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा। क्यों? आप अपनी चीज़ों को अपने टारगेट्स गलत सेट करते हैं। आप ऐसे टारगेट्स हों जो डेफ़िनिटली उनमें चैलेंजिंग ज़रूर हों बट अचीवेबल हों, जो आप कर सकते हैं, जिसके पास आपके पास टूल्स हैं।
फिर क्या होता है, आपका पार्ट क्लियर रहता है, आपका ज़हन क्लियर रहता है, आप भटकते नहीं है, आपको अननेसेसरी फेलियर्स को नहीं भुगतना पड़ता। मैं हमेशा एक बात कहा करता था अपने जूनियर से कि यार फेलियर्स को ना अपने और अपने बच्चों की लाइफ में कम से कम आने दो। मतलब ऐसी चीज़ में उनको मत डालो जो आपको पता है कि फेल हो जाएँगे। हुँ, ये एक बच्चा है, नॉर्मल स्टूडेंट है, जो मेरे एक दोस्त है इस्लामाबाद में, उसने कहा जी वो बेटे को मेडिकल में एडमिशन दिलवा रहा था और बड़ा सिस्टम बड़ा खराब है, ये है, यूँ है, फलाना है, फलाना है। मैंने कहा क्या हो गया भाई मुझे बताओ? उसने कहा जी वो, मैंने कहा उसके नंबर्स कितने हैं? उसने कहा जी वो सी सी ओ लेवल्स ए लेवल्स क्या था, सी ग्रेड से। मैंने कहा देखो चक्कर ये है कि ठीक है, ख़्वाहिश और चीज़ है। तुम सी लेवल अगर बच्चा ले रहा है तो उसका लाज़मी नहीं कि इट्स नॉट बैड, ठीक है, उसकी कैपेसिटी डिफरेंट चीज़ों में ज़्यादा अच्छी होगी, तो तुम उसे मेडिकल स्कूल में क्यों डालना चाह रहे हो? तुम हुँ, फलाने कोटे के चक्कर कर रहे हो, वो पढ़ाई डिफरेंट है, तो वहाँ परफ़ॉर्म नहीं कर पाएगा, फिर तुम्हें तकलीफ़ होगी कि जी सिस्टम खराब है। तो एक चीज़ डिज़ाइन्ड है, ये चीज़ तुम्हें पिछले 10 साल से पता थी कि जी टारगेट क्या होना है, मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए क्या करना पड़ता है। तुम्हारा बेटा नहीं है, कोई मसला नहीं, इतनी जो 1000 18,000 प्रोफ़ेशन 12,000 प्रोफ़ेशंस है दुनिया में, इतने उनमें डालो ना जिसमें एक्सेल करे वो। सबको पता है मेडिकल की पढ़ाई डिफरेंट होती है, मेडिकल में पढ़ना पड़ता है, मेडिकल की पढ़ाई जो है वो, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे पता है मेडिकल की पढ़ाई जो हमारी पढ़ाई से 10 गुना ज़्यादा होती थी, हमें इसलिए ज़्यादा लगता था कि हम साथ-साथ काम भी कर रहे होते थे। तो आपको पता है, आपको बच्चे ने ए लेवल्स में आते-आते 12-13 साल लगा दिए हैं, तो आप गलत राह की तरफ क्यों लेके जा रहे हो उसको? गलत टारगेट क्यों सेट कर रहे हो? उसके लिए बहुत सारी फ़ील्ड है और एट द एंड ऑफ द डे कोई गारंटी नहीं है या कोई नहीं है हुँ, कि ये कर लेंगे तो कर पाएँगे। अल्लाह मियाँ ने रिज़्क के रास्ते बड़े डिफरेंट अंदाज़ में खोले हैं। अल्लाह मियाँ जब रिज़्क सही, देने पे आता है, वो आता है, आप चीज़ों में करें, आप जो फ़ील्ड लें, आप उसमें एंड तक जाएँ, आप उसको मुकम्मल करें। बट जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि बड़ा ज़रूरी है कि उस फ़ील्ड में अच्छा नहीं है तो दूसरी फ़ील्ड में कर लो। आप उसको भट्टी में झोंक रहे हो, तो आपको पता है कि वो चीज़ें प्रीरिक्विज़िट नहीं कर पा रहा, तो आप उसको उठा के तंदूर में मत फेंको ना। आप उसके लिए ऐसी सही। चीज़ करने दो, जिसमें वो एक्सेल करे, जिसकी वो ख़्वाहिश हो। होगा, उसमें जाएगा, अचीव करेगा, खुश भी होगा, अर्न भी करेगा, कामयाब भी होगा। ठीक। बहुत शुक्रिया परम साहब। तो बड़ी अहम बात आपने बताई कि अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस और गोल्स रियलिस्टिक हैं, तो हम पे प्रेशर कम बनता है और हम बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकते हैं। ना ये दुनिया लिमिटेड है, ना कैरियर्स लिमिटेड अब दुनिया में रहे हैं, तो खामखा अपने आप को किसी भट्टी में डालने की बजाय ज़िंदगी को आप ईज़ी करके चल सकते हैं। हमारी ऑडियंस में डॉक्टर ज़ैन साहब ने कहा है, ज़रा डॉक्टर्स कैसे बैलेंस मैनेज कर सकते हैं? तो ज़ैन हम ज़रा ओवरऑल बात करेंगे क्योंकि हम किसी एक स्पेसिफिक प्रोफ़ेशन में नहीं जा सकते। फैसल साहब ने कहा है कि बुक रीडिंग अगर यूथ शुरू करें, तो वो बहुत कुछ सीख सकते हैं और ज़िंदगी में ये जो रोड ब्लॉक्स हैं, इनसे बच सकते हैं। ताजील का कहना है कि ओवरथिंकिंग, तो इसकी हम अपने कहेंगे स्पीकर से इसके बात करें, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब मुझे 3 टर्म्स पे आपका इनपुट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमें ज़रूर करें। ये शायद ये 3 बुनियाद बनती हैं जो ओवरऑल हम रोड ब्लॉक्स की या मेंटल ब्लॉक की बात कर रहे हैं। एक तो फ़ियर ऑफ फेल्यूर, इन जनरल तो बात हुई है, ज़रा स्पेसिफिकली मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप इस पे बात करें। दूसरा, अच्छा, एक तो फ़ियर ऑफ फेल्योर का बाज़ लोगों को मसला है और कुछ का प्रॉब्लम ये है कि वो परफेक्शनिज़्म के चक्कर में, जैसे आपने कहा कि ए ग्रेड के चक्कर में अपनी शख्सियत को बर्बाद कर लेते हैं और तीसरे हैं जो इन बिटवीन के वो सेल्फ डाउट में रहते हैं। ये 3 मुख्तलिफ हालतें हमारी क्यों होती हैं और हम कैसे इससे निकल सकते हैं? जब आप परफेक्शनिज्म की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो परफेक्शनिज्म जो है वो ओवर द नाइट तो कोई नहीं सीखा। परफेक्शनिज्म भी हमें सिखाया जाता है। वो हमें बताया जाता है कि आपने परफेक्ट होना है और बहुत सारी फैमिलीज़ में हम देखते हैं कि इवन हम इनको अपनी ज़ुबान में हम इनको शेयर्ड सिम्पटम्स कहते हैं, कि समटाइम्स हमारे पेरेंट्स और पेरेंटिंग में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉमनली प्रैक्टिस होती हैं और हम बचपन से इतना ज़्यादा उसको देखते हैं दैट वी स्टार्ट थिंकिंग कि हमें हर चीज़ वी हैव टू बी परफेक्ट लाइक आवर फादर, लाइक आवर मदर। वो and they feel very demanding about it. The parents are also very demanding. और सही, तीसरी चीज़ वही वही है कि बेस्ट परफॉर्म करना है। भी इसमें खैर पर्सनैलिटीज़ भी डेवलप हो जाती हैं जिसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं कि जिसमें परफेक्शनिज्म इज़ समथिंग हुँ, व्हिच इज़ रिक्वायर्ड। उसी की वजह से
फिर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना काम टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाते, डेडलाइंस को मीट नहीं कर पाते, और इवन जॉब्स के दौरान भी इफ दे हैव अ प्रोजेक्ट विद देम, आई हैव क्लाइंट्स कमिंग टू मी कि जी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी मेरी तसल्ली नहीं होती। तो जब तक मेरी सही। तसल्ली नहीं होगी आई कांट सबमिट द वर्क। दूसरा जो आपने कहा कि एक तो परफेक्शनिज्म है, दूसरा आपने कहा कि जो लो परफॉर्मर्स हैं जो कि परफॉर्म नहीं कर पाते, तो जी। डेफिनेटली सोसाइटी इज मैं हमेशा पेरेंट्स जब आके मुझसे कहते हैं कि वन ऑफ लाइक स्टूडेंट्स पेरेंट्स केम एंड सेड कि हमें ये कहा गया है कि इसका जो दिमाग का, क्योंकि ये मैट्रिक में बहुत आउटस्टैंडिंग था, तो अब ये यूनिवर्सिटी में जाके स्लो हो गया है, तो हमें ये लगता है कि इसके दिमाग का एक हिस्सा जो है वो शायद अच्छा। अंदर से काम करना बंद हो गया है और वो खत्म हम्म। हो गया है। वो कहते हैं सही। डॉक्टर्स ने कहा है कि वो दिमाग का हिस्सा खत्म हो गया है। तो अच्छा। मैंने उनसे कहा कि जी ठीक है, आप मेरे पास लाइए, बात करते हैं कि क्यों पहले वो हम्म। आउटस्टैंडिंग था, तो अब दिमाग का हिस्सा खत्म होने से वो कैसे नहीं कैसे? परफॉर्म कर सकता। तो अब ठीक। बाज़-औक़ात हम उनके जो लाइफ की अदर कंडीशंस होती हैं, जैसे हम ये कहते हैं कि प्यूबर्टी में जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हम सही। नहीं देख रहे होते। फिर उसके बाद बाज़-औक़ात आपकी जो स्कूल की कंडीशंस हैं, यूनिवर्सिटी की हैं, आजकल जो सबसे बड़ा फिनोमेना मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे देख रही हूँ, दैट इज़ आइसोलेशन। सोशल वैलिडेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है कि हमें एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए, लोग हमें अच्छा समझें। हमेशा से था, अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो वो जी सीन करके छोड़ दिया, मुझे कमेंट नहीं हम्म। मिला, मुझे इतने लाइक्स नहीं आए, तो वो जो परफेक्शनिज्म और वो जो एक पॉजिटिविटी और वो जो हमारी एक परफॉर्मेंस का प्रेशर है, फियर टू परफॉर्म का कि अच्छा ये हमने किया है, इस पे लाइक्स नहीं आए, तो इसका मतलब है कि लोग जो हैं और हमारा पीयर ग्रुप हमें एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा। तो बाज़-औक़ात आइसोलेशन है, बाज़ सोशल एक्सेप्टेंस है, बाज़-औक़ात आपकी जो पीयर प्रेशर्स हैं और बुलिंग है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, बुलिंग का कॉन्सेप्ट पहले इतना ज़्यादा नहीं था, अब बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम उसको शायद रोकने के लिए पब्लिसाइज़ करते हैं या उस पे बात करते हैं, तो वो हम्म। बाज़-औक़ात इसके, क्योंकि जब भी कोई कॉन्सेप्ट आप जनरल कम्युनिटी में फ्लोट करते हैं, तो दोनों तरह के रिएक्शंस आते हैं। जैसे क्राइम की बात करेंगे, तो क्राइम रुकता भी है और क्राइम जो है वो बढ़ता भी है। समटाइम्स बढ़ता पीपल भी। फाइंड वेज़ कि उसको प्रैक्टिस कैसे किया जा सकता है, तो स्टूडेंट्स के अंदर भी ऐसा ही है। तो ये जो सेल्फ डाउट भी है, परफेक्शनिज्म भी है और फियर ऑफ परफॉर्मेंस है, तीनों चीजें जो हैं वो डेवलप हमारे, एक तो हमारी इंटरनलाइजेशन है कि हम चीजों को इंटरनलाइज कैसे करते हैं, और दूसरा हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आजकल हमारी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो बहुत सपोर्टिव है, कंपटीशन सही। बहुत बढ़ी है और सोशल वैलिडेशन इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है, जिसकी वजह से नहीं, अगर मेरा एक दोस्त है तो इसका मतलब है कि आई एम नॉट गुड इनफ। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं जिस बच्चे की भी स्टूडेंट की बात भी कर रही थी, फाइनली आई फाउंड आउट दैट ही वाज इमोशनली अटैच्ड विद समवन, तो वो उन्होंने उनको एक कहा कि जी आई एम सॉरी, आई डोंट लाइक यू, तो आप अब मेरी जिंदगी से माइनस है, जबकि पहले वो जाहिर अच्छा। साहब उनके साथ टाइम था उनका और अच्छा टाइम ठीक। चल रहा था। तो उसके बाद वो स्टूडेंट है, उसकी वो वाली इमोशनली वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो चुका था कि वो पढ़ाई को तवज्जो ही नहीं दे पाता था। तो सम टाइम्स हमारे अंदर ये वाला प्रॉब्लम होता है कि पेरेंट्स ये नहीं देख रहे होते कि इट्स नॉट ओनली हिम और हिज इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के जिसकी वजह से परफॉर्मेंस है, देयर आर मेनी अदर सोशल फैक्टर्स। पेरेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट है। हमारे एक बड़े अच्छे प्रोफेसर हैं, वो ये बात करते हैं, स्कूल के अंदर स्कूल टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे थे, मेरे साथ शेयर कर रहे थे, मैं इसको जरूर शेयर करना चाहूंगी कि वो कहने लगे कि जी। जी। मैंने टीचर से ये पूछा कि मुझे ये बताइए कि जब सुबह बच्चा जो है वो आता है और सर नीचे करके और आपको उसका नॉन वर्बल बता रहा है कि वो बड़ा ही लो फील कर रहा है, वो उदास है, वो परेशान है, वो हो सकता है आपके टेस्ट की वजह से परेशान ना हो, लेकिन हो सकता है सही। आपके घर में उसकी माँ को उसके बाप ने मारा है, उसको गाली हम्म। दी है, उसको मिसट्रीट किया है, उसके भाई को मारा है, उसके घर के अंदर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जो उसको समझ नहीं आ रही वो कैसे डिफाइन करे। तो जब वो स्कूल में आके ऐसे करके बैठा है, तो क्या टीचर ने पूछा तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम बाज वक़्त सिर्फ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज नहीं है, परफॉर्मेंस सिर्फ ये नहीं है कि उसका आईक्यू कैसा है और वो कितना अच्छा एकेडमिकली या प्रोफेशनली
परफॉर्म कर रहा है, क्या हम अपने किसी एम्प्लॉय को पूछते हैं, किसी दिन वो लो होता है तो हम देख के पूछते हैं कि भी आपको आज आप ठीक नहीं लग रहे, आज आप ठीक हैं? हम हमेशा टारगेट्स की बात करते हैं, हम हमेशा अचीवमेंट्स की बात करते हैं, हम हमेशा परफॉर्मेंस एवेल्युएशंस की बात करते हैं। तो वो जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं, हम उनको माइनस कर देते हैं समटाइम्स, कि समटाइम्स देयर आर थिंग्स अदर देन वो कैपेसिटीज जिस पे आप उसको अवेलुएट कर रहे हैं, उन उन अदर फैक्टर को भी जहन में रखें। यानी अगर मेरा ख्याल है कि क्लास में अगर एक टीचर किसी स्टूडेंट पे हंसता है या उसका मजाक उड़ाता है, तो वो बच्चा, उसका आईक्यू कितना क्यों ना हो, वो जनरली परफॉर्मेंस एंजाइटी डेवलप कर लेता है, सोशल सही एंजाइटी डेवलप कर लेता है। तो आप बाकी फैक्टर्स पे पेरेंट्स क्यों नहीं, अब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो वो एक बड़ा, मेरे बेटे ने बड़ा अच्छा नाम रखा हुआ है और उसके फ्रेंड्स ने, सब ने मिलके, कि पीटीएम जब पेरेंट टीचर मीटिंग है तो उसका मतलब है पुत्र तेरी मौत। ठीक है, पीटीएम पुत्र तेरी मौत क्यों है? क्योंकि माँ ने भी शिकायतें करनी है, टीचर ने भी शिकायतें करनी है, सही बाप ने भी डांटना खा के और टीचर ने क्लास में डांटना। ठीक है, सही तो ये नहीं, आप जाके बजाय इसके कि हम सिस्टम्स में, मैं जाके उनसे यही पूछती हूँ कि जी व्हेन दे आर पेइंग यू, तो आप मुझे कह रहे हैं कि आपका बच्चा नहीं अच्छा कर रहा, तो आप बताएं कि बच्चा क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा। 6 घंटे ये क्लासरूम में योर आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स योर बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि बच्चा घर जाके या पिटता है, या ह्यूमिलेट होता है, या उसको डांटा जाता है कि नंबर क्यों नहीं आए। क्यों नहीं? तो ये जो सारी तीनों चीजें हैं, ये उसी वक्त डेवलप होती हैं जब हमें फीडबैक्स मिल रहे होते हैं एनवायरनमेंट से। सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा खुर्रम साहब, ये हमारे पास क्वेश्चन भी है और मैं भी चाहता था, क्योंकि ये भी एक कॉमन डिजीज़ है, मुझ में भी काफ़ी पाई जाती है, ओवर थिंकिंग। जैसे शायर ने कहा है ना कि इरादा बांधता हूँ, बांध के तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं और फिर खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। आपकी अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस से बताइए कि इस चीज़ से कैसे निकला जा सकता है? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, ओवरथिंकिंग वहीं पे आती है जहाँ पे हम अचीव नहीं कर पा रहे होते चीज़ों को जो हमने सोची होती हैं। सही। हल निकालें, लिखें। मैं तो बहुत लोगों को कहता हूँ ये बात कि जी जब ऐसी चीज़ें हों, जब ज़हन आपका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो ना, तो लिखना शुरू करें। अपनी चीज़ों को लिखा करें और वन बाय वन उनके ऊपर दें कि ये था तो ये है, ये था तो ये है, क्या मैं गलत था? और अक्सर ये होता है कि चलें 100% तो नहीं मैं कहूँगा, 30-40% आप अपनी लिस्ट को रिड्यूस कर देते हैं। क्या आपने लिखी चीज़ें कि जी मैं ये चीज़ें मेरे ज़हन में गूँज रही हैं, यहाँ मैं अनकम्फ़र्टेबल हूँ। होता क्या है, ओवरथिंकिंग क्या है एक्चुअली, जहाँ पे आप अनकम्फ़र्टेबल होते हैं, आप अचीव नहीं सही। कर पा रहे होते या आपकी नीड्स और वो चीज़ें आपस में मैच नहीं कर रही होती। अहमद साहब, ओके। आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप हैंड रेज़ कर रहे हैं, आप अपना प्लीज़ क्वेश्चन टाइप करके पूछ लें, हम उसका जवाब दे देंगे। हाँ, तो मैं हाँ, आप मैसेज कर रहे हैं प्लीज़। मैसेज कर दें, हम आपको चैट में मैसेज कर दें, हम आपका कर देंगे। तो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है ये चीज़ कि जी हम अपनी चीज़ों को कन्फ्यूज़ होते हैं या हमें लग रहा होता है कि यहाँ हम अचीव करना चाहते हैं, मेरी नीड है, मैं नहीं कर पा रहा या क्या होगा? तो उसको लिखना शुरू करें, लिखा करें ताकि एक तो आपको अपनी एनर्जी को, अपनी सोचों को एक धारे पे लेकर आए, एक कागज़ पे लेकर आए और उसके बाद वन बाय वन करके उसका देखें क्या सॉल्यूशन है। एक बड़ी नोन सेइंग है, मेरे ख्याल है बुद्धिज़्म की है कि उस जिस चीज़ का आप हल नहीं निकाल सकते, उसमें परेशान होने का क्या फ़ायदा? जिसका आप सही है। हल निकाल सकते हैं, तो उसमें परेशान होने का क्या फ़ायदा? तो ये बड़ा हाँ, इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी सोचों को ना एक कहीं न कहीं लिख ज़रूर लें, तो आपको पता चल जाए कि क्या चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है। ओवरथिंकिंग में 90% ये होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि एग्ज़ैक्ट आपका इश्यू क्या है। हुँ, हुँ। आपके ज़हन में इतना गुंजल बना होता है, इतनी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हुई हुई होती हैं कि आप ये आइडेंटिफ़ाई ही नहीं कर पाते कि जी हमारी प्रॉब्लम क्या है, मैं क्या कहाँ परेशान हूँ। और है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पैनिक अटैक हो जाते हैं, चीज़ें हैं, त 4 चीज़ें इकट्ठी आ गई, ऐज बढ़ रही है, बीमारी है, चीज़ें हैं, मौसम खराब है, 4 चीज़ें इकट्ठी आ गई, आप एकदम फटीग में आ जाते हैं। तो उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो तो ज़ाहिर-सी बात है, चीज़ें मगर एक स्टेप ये हो सकता है कि आप चीज़ों को लिखें और देखें आपको आपको क्या चीज़ तंग कर रही है, प्रायोरिटाइज़ करें। इश्यूज़ हर इंसान के ज़िंदगी में है, हर चीज़ आपके बस में नहीं होती। अल्लाह पे तवक्कुल रखें और चीज़ों को लिख कर टारगेट करें ताकि आप उनको प्रायोरिटाइज़ कर दें। ज़्यादातर चीज़ें अचीव इसलिए भी नहीं हो पाती जो हम कुछ होती हैं जो हम अचीव कर सकते हैं या हम सॉल्व कर सकते हैं या हम इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे होते हैं, हम ये नहीं सोच रहे होते कि पहले क्या करें। हम 2-3 काम इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं और हम नहीं कर पाते हैं।
मेरे हिसाब से एक ज़ाती तजुर्बा है या वो कि आप चीज़ों को लिखें और उसको प्रायोरिटाइज़ करें कि मैं पहले किस-किस कौन-कौन सी बैटल को मैंने पहले लड़ना है, कौन-कौन सी चीज़ों को पहले मैंने ओवरकम करना है, किस चीज़ को लोएस्ट प्रायोरिटी है या कोई चीज़ ऐसी है। और एक चीज़ याद रखिएगा, नो कहना सीखें लाइफ़ में। बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि जो चीज़ आप नहीं कर सकते, बहुत सारी दफ़ा हम अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, हम नो नहीं कह पाते। कोई चीज़ ऐसी अगर है कि जो आप नहीं कर सकते और आप बस शर्मा-शर्मी में आप एक रिस्पेक्ट के तौर पे या एक मोहब्बत के तौर पे आप कमिट कर लेते हैं, तो ओवर कमिटमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है आपके ज़हन को। आप कमिट कर चुके होते हैं, आपको शर्मिंदगी हो रही है कि जी मैंने कमिट कर लिया, मैं पूरा नहीं कर पा रहा, बट आपको आप एनालाइज़ करें तो आपको कमिट ही नहीं करना चाहिए था। तो नो कहना सीखें, लाइफ में विटामिन एन की बहुत ज़रूरत होती है, विटामिन नो, कि जहाँ पे आप ओवर कमिट मत करें, अपने आप को ऐसी चीज़ों में बर्डन मत करें, ऐसी चीज़ों में बर्डन मत करें जो आप नहीं कर सकते या आपके लिए मुश्किल है या आपको पता है कि आप उसको करने के चक्कर में आप फटीग में आ जाएँगे। आप अपने आप को सही। डिस्टर्ब करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। यानी की लर्निंग ये है कि अगर हम सेल्फ एनालिसिस करना चाहते हैं तो अगर लिखने की आदत बनाएँ तो प्रायोरिटाइज़ करने में बड़ी सहूलत होती है कि मैं कहाँ यानी खामख़ाई फ़ियर का शिकार हूँ, कहाँ मैं परफेक्शनिज़्म का शिकार हो रहा हूँ, कहाँ मैं डाउट का हो रहा हूँ। तो ईज़िली आई कैन सॉर्ट आउट आप सर्टेन प्रायोरिटाइज़ थिंग्स करें और एक-एक करके सॉल्व करें, एट अ टाइम 10 एक-एक चीज़ें करके। सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं कर सकते, इंसान हैं। नहीं कर सकते। वेरी कर राइट, सकते। बिल्कुल ठीक। अच्छा गो हमारे पास टाइम कम रह गया है लेकिन डॉक्टर साहब आपका तजुर्बा और इल्म से फ़ायदा उठाते हुए ये क्वेश्चन मैंने लाज़मी आपसे करना है। सेल्फ जी। टॉक, इस पे कहा जाता है कि ये जो सेल्फ टॉक है यही आपको नेगेटिव बना देती है, सडियल बना देती है, आपको पॉज़िटिव कर देती है, हाई अचीवर बना देती है। तो मैं इस पे पढ़ रहा था कि ये शख्सियत की बुनत में, डेवलपमेंट में इसका बड़ा रोल है। तो मैंने एक जगह पढ़ के बड़ा मैं हैरान भी हुआ, आपके नॉलेज में तो ये चीज़ होगी कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इस मौज़ू पे लिखा है और चूँकि अरबी में वो ज़्यादा लिखते थे हदीस क़ल्ब के नाम से, दिल की बात। तो ये हमारे बुज़ुर्गों में भी चला आ रहा है कि जो मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, वही फिर मेरी शख्सियत बनती है। तो हम कैसे इसे सेल्फ टॉक को पॉज़िटिव करके अपने आप को ये जो मेंटल ब्लॉक्स हैं उनसे निकाल सकते हैं? सेल्फ टॉक जो है वो डेफिनेटली बड़ी इम्पोर्टेंट है और सेल्फ टॉक ही शायद वो बेस है जहाँ से आपकी पर्सनालिटी भी बनती है, आपके गोल्स भी सेट होते हैं, आपके सही, रिलेशनशिप भी डिफाइन होते हैं, आपका करेक्टर भी डिफाइन होता है, आपके मॉरल्स भी डिफाइन होते हैं। बिकॉज जो आपने अपने आप को बताना है कि ये मैं हूँ और ये मैं करूँगा, वो आपकी थॉट सेल्फ टॉक में जनरली हम ये कहते हैं कि पॉजिटिव सेल्फ सजेशंस एंड नेगेटिव सेल्फ सजेशंस, कि आप अपने आप को बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन द फीडबैक यू आर गेटिंग फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट, how you think about yourself and how you talk yourself about your own personality and about your life as a whole. तो जब आप सही, सोच रहे हैं चीजों को और जब आप प्लान कर रहे हैं चीजों को, उन चीजों को प्लान करते हुए जो आप अपने आप को बता रहे हैं, यानी, और इसको जैसे आपने कहा ना कि कंट्रोल कैसे करना है, जी, जी, जब भी हम कुछ सोचते हैं, जब भी हम किसी चीज के बारे में एक राय रखते हैं, तो हमारे अंदर तीन चार चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो रोल प्ले कर। एक तो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है कि हमने क्या क्या चीजें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की हुई हैं। दूसरी सही, चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारी अपना इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं, हमारी एनालिटिकल एबिलिटीज कितनी है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कितनी अच्छी हैं। ठीक है, यानी जो चीज हम से मिल रही है हम उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, और फिर हमारी डिसीजन मेकिंग क्या है, हम कितने डिसाइसिव हैं चीजों के बारे में और पॉजिटिवली हैं या नेगेटिवली हैं। अब जब इन्वायरमेंट से हमारे पास चीजें आ रही होती हैं तो वो प्रोसेस सारी यही होनी है, माइंड के अंदर ही प्रोसेस होनी है। तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो डेफिनेटली जब हम एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज का, जिसकी बेसिस पे फिर हम सेल्फ सजेशंस देते हैं कि ये काम मैं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, और ये बड़ी बेइज्जती की बात है, ये बड़ी खुशी की बात है, इस पे मुझे प्राइड फील करना चाहिए, इस पे मुझे अशेम्ड फील करना चाहिए। तो सही, ये जो सारे इमोशंस हम अटैच हैं, इनफैक्ट जो आपके सेल्फ टॉक है वो फर्स्ट आपकी परसेप्शंस हैं, फिर आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज हैं, फिर आपके इमोशंस हैं जो आप उसके साथ अटैच कर देते हैं, और फिर वो मैनिफेस्ट होते हैं बिहेवियर्स की सूरत में।
सही। कि हम और उन इमोशंस जो अहमियत है वो सबसे ज्यादा होती है, बाजुका थॉट्स भूल जाती हैं, इमोशंस याद रह जाते हैं। आई थॉट नेगेटिव अबाउट समथिंग, किसी चीज से नफरत फील हुई, किसी चीज से अनोयंस फील हुई, किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैचमेंट फील हुई, पॉजिटिविटी फील हुई। तो जब हम अपने आप से बातें करते हैं तो हम अपने आप को डायरेक्शंस दे रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप एक गाड़ी के अंदर बैठ के आप उस सिस्टम को यूज करते हुए उसको डायरेक्शन देते हैं कि उसने किस तरफ जाना है, स्लो होना है, फास्ट होना है। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली बेस्ड ऑन आवर एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंसेस हम डिसाइड कर रहे होते हैं, और हम अपने आप को बता रहे होते हैं कि ये काम हम कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते, ये चीज हमारे लिए अच्छी है, ये चीज हमारे लिए बुरी है। क्योंकि बाकी लोगों की तरफ से या एनवायरनमेंट की तरफ से तो हमें एक फीडबैक मिलता जा रहा है। और सही। आजकल जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है, जो सेल्फ टॉक कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रही हैं, गैप क्रिएट हो रहा है, वो इसलिए कि इंफॉर्मेशन फ्लो इतना ज्यादा है और उस इंफॉर्मेशन की वैलिडिटी कोई नहीं है, रिलायबिलिटी कोई नहीं है। आपको नहीं पता कि वो इंफॉर्मेशन ठीक है या गलत है, लेकिन क्योंकि आपकी परसेप्चुअल एबिलिटीज में वो मौजूद है तो आपने उसी की बेसिस पे आपका ब्रेन वर्क करना शुरू कर देता है। तो हमें जो फिल्टर्स लगाने होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट, कि हम अपने ब्रेन में फिल्टर्स कैसे लगाते हैं। अगर एक नेगेटिव या पॉजिटिव सेल्फ सजेशन आ रहा है तो हम उसके अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं? क्या हम लॉजिक ढूंढते हैं? क्या हम एविडेंस ढूंढते हैं? क्या हम उसके लिए ये देखते हैं कि किसी एक के एक दफा होने की बेसिस पे हमने कोई चीजें अपने लिए या अपनी इन्वायरमेंट के लिए या अपने रिलेशनशिप के लिए या अपने करियर के लिए या अपने दोस्तों के लिए सोच लिया है? या क्या हमारे पास उसके लिए और एविडेंसेस भी हमें चाहिए टू डिसाइड अबाउट समथिंग एंड टू टेल यू this is something you are or this is something you should be doing in life? That is something I think कि जो जिसको रोकने का जो सबसे अच्छा तरीका है, कि जब आप नेगेटिव सेल्फ टॉक में जाते हैं या आपको लगता है कि आपके डिसीजंस जो हैं वो ठीक नहीं हैं या आप कंफ्यूजन का शिकार हो रहे हैं, तो फिर आप ऑप्शंस देखते हैं और फिर आप एविडेंसेस ढूंढते हैं कि इस चीज के होने या ना होने के पीछे क्या क्या रीजंस थी और इसके होने या ना होने में क्या क्या फैक्टर्स रोल प्ले कर सकते हैं। जब इन दोनों एंगल से देखेंगे तो यू विल बी डिसाइडिंग समथिंग एंड टेलिंग समथिंग very objectively with a balanced approach, that this is something which I can achieve, this is something which I should do, this relationship is beneficial for me or not, or this is something which I should omit in from my life or I should include in my life. थैंक यू वेरी I मच डॉक्टर hope साहब। that I answered what you ऑफ asked. कोर्स, ऑफ कोर्स, वेरी वेल, वेरी वेल। आपने उसकी सारी बेसिस के साथ किया है। तो वेल डियर पार्टिसिपेंट, हमारा आज का जो मौजू था वो बड़ी हद तक हमने कवर करने की कोशिश की है कि ये जो मेंटल ब्लॉक हैं ये बुनियादी तौर पर नज़र ना आने वाली एक नफ्सियाती रुकावट है जो हमने खुद ही पैदा की होती है, और जब हम गौर नहीं करते तो हम इसे देख भी नहीं पाते। लेकिन हमारे बिहेवियर में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि फियर ऑफ फेल्यूर के तौर पर, परफेक्शनिज्म के तौर पर, या प्रोक्रास्टिनेशन की शक्ल में ये नज़र आती है कि हम अपनी तालीम पे तो जो नहीं दे पाते, अपने काम को सही तौर पर नहीं कर पाते। तो इसका हल आपके अंदर है। पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें, नेगेटिव दोस्तों को मत सुनें, टीचर्स या पेरेंट्स की वो खुद ख्वाब पूरे नहीं कर सके, आमतौर पर उसका प्रेशर अपनी औलाद पे वो डालते हैं। तो बड़े पोलाइटली और तरीके से बात करने की ज़रूरत होती है कि मेरे जो ख्वाब हैं, जो मैं कर सकता हूँ, प्लीज़ उसके मुताबिक मुझे चलने दें। तो लाइफ इतनी मुख्तसर भी नहीं है जितना हम कहते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए कामयाबी है कि जो अपने अंदर झांक सकते हैं, हकायक को तस्लीम कर सकते हैं और फिर उसके मुताबिक आगे बढ़ सकते हैं। तो मज़ीद यू कैन स्टडी ऑन द इंटरनेट, और अगर क्वेश्चन हो तो जो हमारा ईमेल यहाँ चैट में दिया गया है वो आप हमें लिखिए, तो हम एक्सपर्ट जो डॉक्टर साहब जैसे हैं उनसे उसका आंसर हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, फ्रॉम माई कोर ऑफ हार्ट, कि आप आए, आपने कंट्रीब्यूट किया। यकीनन आपको भी खुशी होगी कि लोगों ने फेसबुक और जगहों पे, और ये रिकॉर्डिंग हमारी होती है अवेलेबल फेसबुक पे भी, हमारे चैनल पे भी। तो इससे सैकड़ों लोग आमतौर पर 24 आवर्स के अंदर बेनिफिट कर रहे होते हैं। थैंक यू खुर्रम साहब, एंड इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।
जज़ाकल्लाह। बस अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह